Hello everyone, I am Minal Moon, lecturer in Information Technology, Government Polytechnic Brahmapuri. In previous video, we have seen various types of operating system and introduction to operating system. Now, in this video, we will see mobile-based operating system. That is the operating system used in mobile platform. That is Android operating system and iOS, iPhone operating system in details. So what is Android? So Android is a Linux based platform for mobile devices. Okay, so Android is a operating system which are used in the mobile platform such as smartphone, tablets, e-readers, Android TV, Google Glass, Google Glasses, etc. These are the devices in which Android operating systems are used. This Android operating system is based on Linux kernel, Linux version 2.6 kernel version. Then it is an open source operating system in which you can develop your own modules. Means you can modify the actual coding of that Android application and develop your own version of your applications. That is open source operating system, and you can develop your own version in C or CPP language, but most of the application is developed in Java language. Okay, so जो ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मोस्ट ऑफ दी मोबाइल डिवाइसेस में यूज़ होती है. फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन में, टैबलेट्स में, ई रीडर या एंड्रॉयड टीवी में. ठीक है. फिर ये जो एंड्रॉयड सिस्टम है ये लिनक्स बेस्ड है. मीन्स जो लिनक्स हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें ही जो भी उसका डेवलपर होगा उसने लिनक्स के कोडिंग में कुछ चेंजेस किए हैं या अपना ओन वर्जन डिजाइन किया है और उसको नाम दे दिया एंड्रॉयड. सो ये बेस्ड है लिनक्स के कर्नल वर्जन के 2.6 पे. देन इट इज ओपन सोर्स है. अगेन ये एंड्रॉयड जो है वो ओपन सोर्स है. कोई भी उसके कोड में चेंज करता है और अपना वर्जन बना सकता है. जैसे एंड्रॉयड के डेवलपर ने किया, लिनक्स के वर्जन में कुछ चेंज किया और एंड्रॉयड डेवलप किया. ठीक है. और you can develop application in Android in C or CPP language, but most of the application is developed in Java language. Okay, so the next concept in Android is Android architecture. जो Android का operating system का architecture कैसे होता है, तो उसमें basically 3 layers होते हैं. मेन ऑपरेटिंग सिस्टम जो लोअर लेवल पे होती है. देन मिडल वन इज द मिडलवेयर एंड टॉप मोस्ट लेयर इज द एप्लीकेशन. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट इज द किट होता है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, बट दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर एंड्रॉयड आर्किटेक्चर. एंड्रॉयड आर्किटेक्चर ओनली कंसिस्ट ऑफ दिस 3 parts, that is operating system, middleware and applications. So next we will see Android architecture. Okay, this is the basic diagrams of your Android architecture, which consist of 3 parts: application, that is your topmost layer, then middleware, and lower layer is your operating system. So first we will see application layer. Okay, then again application layer is divided into 2 parts: main applications and their application framework, APIs, application programming interface. Okay, so application layer consists of your native native Android application and third party application. ओके, तो नेटिव जैसे आपका कुछ मोबाइल डिवाइसेस होगा तो उसमें कुछ एप्लीकेशन इनबिल्ट रहते हैं, जैसे कांटेक्ट होगा या मैसेज होगा या
ब्राउज़र कुछ इनबिल्ट होगा उसमें, तो ये सब जो मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं या इनबिल्ट होते हैं उसको हम नेटिव एंड्रॉयड ऐप्स बोलेंगे, ठीक है। और बाकी के जो ऐप हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं या अदर साइट से डाउनलोड करते हैं तो उसको हम थर्ड पार्टी ऐप्स बोलेंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर पे मल्टीपल्स नंबर्स ऑफ एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे गेम्स हो गए या आपके इनबिल्ट एप्लीकेशन हो गए या कॉल्स हो गया, ब्राउज़र हो गए, तो ये सब जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन टॉप मोस्ट लेयर पे होते हैं जिनसे यूज़र जो है वो इंटरैक्ट करता है। एंड फिर उस एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए या एप्लीकेशन का जो वर्किंग प्रोसीजर है या फंक्शन है उसको अच्छे से करने के लिए फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपीआईज होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो यूज होता है द वे ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सॉफ्टवेयर। अगर वन सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड डेटा फ्रॉम अदर सॉफ्टवेयर, देन उनका इंटरेक्शन कैसे होना चाहिए, तो वो इंटरेक्शन डेटा का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होना चाहिए बिटवीन द ऐप टू ऐप, ये सब देखने का जो काम होता है वो एप्लीकेशन फ्रेमवर्क का होता है, एपीआई का होता है। सो various application frameworks includes in Android architectures are these. Okay, so these are, first one is the activity managers, manage the activity life cycle of application, एक्टिविटी लाइफ साइकिल ऑफ एप्लीकेशन, यानी जो भी एप्लीकेशंस होंगे आपके इसमें, तो वो एप्लीकेशन ने कौन से टास्क परफॉर्म किए, कब वो अपडेट हुआ, उसको कब रिक्वेस्ट आई या कौन से सॉफ्टवेयर ने उसका डेटा यूज किया है, तो ये सब जो एक्टिविटी होती है अंडर दी वन ऑफ दी ऐप, तो वो मैनेज करने का काम जो होता है वो एक्टिविटी मैनेजर का होता है। जैसे कॉल का एप्लीकेशन ले लेंगे तो उसमें क्या होता है, कॉल लॉग होता है, कब उसने कॉल रिसीव किया, कब उसको मिस कॉल आया या कब उसने डायल नंबर किया, तो ये सब जो एक्टिविटी सेव होती है वो एक्टिविटी मैनेजर के अंडर होती है, ठीक है। देन सेकंड एपीआई है विंडोज मैनेजर। तो विंडो मैनेजर क्या करता है, मैनेज द विंडोज लिस्ट, वर्क्स ऑन ट्रांजिशन एंड एनिमेशन ऑफ विंडोज। विंडोज मीन्स एट अ टाइम आपके मोबाइल में मल्टीपल नंबर्स ऑफ विंडोज ओपन होंगी, ठीक है। वो भी ब्राउजर ओपन होगा या गेम्स ओपन होगा, जो भी आपने ऐप ओपन कर दिया उसको क्लोज नहीं किया, तो मल्टीपल नंबर्स ऑफ विंडोज ओपन होंगी, तो उसको मैनेज करने का जो काम होता है वो विंडो मैनेजर का होता है कि कैसे ट्रांजिशन कैसे होना है, कैसे हम यूज़र को ट्रांसफ़र करना है, कंट्रोल ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम वन विंडो टू अदर विंडो, या एक विंडो का एनिमेशन कैसा चाहिए, दूसरे विंडो का एनिमेशन कैसा चाहिए, तो ये सब जो काम होता है वो अंडर दी विंडो मैनेजर होता है। देन थर्ड है नोटिफिकेशन मैनेजर। नोटिफिकेशन मैनेजर क्या होता है कि अगर कुछ नोटिफिकेशन आता है नया तो वो शो होना चाहिए हमारे नोटिफिकेशन बार के या यूजर को शो होना चाहिए, तो नोटिफिकेशन मैनेजर इज यूज टू शो नोटिफिकेशन टू द यूजर। देन है व्यू सिस्टम। व्यू सिस्टम क्या है, यूजर को जो व्यूज है मोबाइल का या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो कैसे शो होगा, उसमें कौन से एलिमेंट होंगे, बटन्स कौन से होंगे, टेक्स्ट बॉक्स होंगे, तो फॉन्ट होगा तो कैसे होगा, तो ये सब डिसाइड करने का जो काम होता है वो व्यू सिस्टम का होता है, ठीक है। तो व्यू सिस्टम इज वर्क्स ऑन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लाइक बटन, टेक्स्ट बॉक्स, फॉन्ट साइज एक्सेट्रा। देन है XMPP सर्विस। जो XMPP रिलेटेड जो सर्विस होंगी तो ये एपीआई प्रोवाइड करता होगा। देन है लोकेशन मैनेजर। लोकेशन मैनेजर क्या है, लोकेशन प्रोवाइड करता होगा, मीन्स लोकेशन मैनेजर प्रोवाइड्स लोकेशन सर्विस विच गिव द करंट लोकेशन ऑफ योर एंड्रॉयड डिवाइस एंड अपडेट द लोकेशन ऑफ योर एंड्रॉयड डिवाइस, ठीक है। तो लोकेशन मैनेजर जैसे जीपीएस सिस्टम होगा तो उसके हेल्प से आपकी एंड्रॉयड मोबाइल की करंट लोकेशन होगी वो प्रोवाइड करता है, और अगर चेंज होती है लोकेशन तो उसको अपडेट भी करता है। दैट इज द वर्क ऑफ योर लोकेशन मैनेजर। देन है पैकेज मैनेजर। पैकेज मैनेजर में क्या होगा,
जो भी करंटली इंस्टॉल ऐप होंगे आपके मोबाइल में, तो उसके रिलेटेड जो पैकेज होंगे या रिलेटेड लाइब्रेरीज होंगी वो वहाँ पे सेव होंगी पैकेज मैनेजर में। यहाँ पे इस एप्लीकेशन में जो भी इंस्टॉल होंगे, कुछ इनबिल्ट होंगे या कुछ डाउनलोड किए होंगे, उसके रिलेटेड कुछ जो भी प्रोग्रामिंग होंगी या पैकेज होंगे वो पैकेज मैनेजर में सेव होंगे या स्टोर होंगे। देन रिसोर्स मैनेजर क्या करता है, अगर आपके मोबाइल में जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है, कुछ वीडियो फाइल्स होंगी, टेक्स्ट फाइल होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगी, पिक्चर होंगे, तो वो रिसोर्स मैनेज करने का काम जो होता है वो होता है रिसोर्स मैनेजर का। ठीक है, अगर एक आधे यूजर को वो इमेज देखनी है तो वो इमेज आपके गैलरी में शो होनी चाहिए, फिर उसको ओपन करने के लिए कुछ ऐप होना चाहिए, तो ये सब जो काम होता है उसको मैनेज करने का वो रिसोर्स मैनेजर करते हैं। देन है कंटेंट प्रोवाइडर। कंटेंट प्रोवाइडर यूज्ड व्हेन वन एंड्रॉयड ऐप वांट टू शेयर डेटा विथ अदर ऐप। ठीक है, कंटेंट प्रोवाइड करता है। इफ वन ऐप is required the data from other app, then that interaction between two apps is done with the help of that content provider. Okay. देन टेलीफोनी मैनेजर टेलीफोन रिलेटेड या कम्युनिकेशन रिलेटेड जो वर्क होंगे या फंक्शन होंगे वो करता होगा। मीन्स आपको कॉल करनी है, मैसेज करनी है, टेक्स्ट मैसेज करनी है, चैटिंग रिलेटेड जो भी वर्क होगा वो आपके टेलीफोन मैनेजर का काम होगा। सो दिस इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ योर एंड्रॉयड आर्किटेक्चर in which divided which is divided in two parts. First one is the application and second one is the application framework. The in application, various application are installed, in which some of application is inbuilt application and some of the applications are installed from third party site or play store. And second part is your application framework, that is your application programming interfaces, which consist of various interface which provide the way of interaction between various application installed in your Android devices, which consist of various types of APIs. Activity manager, which manage the activities of various app. Second one is the Windows manager, which manage the various windows open in your Android devices. Third one is the notification manager, which used to show the notification to the user. Fourth one is the view system, which is used to give the uh, graphical user interface related tasks or manage the graphical user interface related uh, functions. Then XMPP service, manage the services related to XMPP. Then location manager gives or provides the current location of the Android device and update. Then package manager stored the related libraries or packages of install application in the Android devices. Then resource manager manage the various resources such as video files, audio files, or various documents which are present in your application, which are present in your Android devices. Then content provider provides the way in which two apps can interact with each other, and telephony manager provide the functions related to communication such as calls function या text message function या any other.